Lesson 11. The Horse. The work of creating the universe was nearly over when a new idea struck the creator's mind. ब्रह्मांड की रचना का कार्य लगभग पूरा हो चुका था जब सृजनकर्ता के मन में एक नया विचार आया. He summoned an assistant and said, "Bring me some more materials. I shall make a new species of animal." उन्होंने अपने सहायक को बुलाया और कहा, मुझे कुछ और सामग्री लाओ, मैं एक नए प्रकार का जीव बनाऊंगा. The assistant knelt down and replied, "Father, when, under the creative seal, you made elephants and whales, lions and pythons." सहायक घुटनों के बल झुका और बोला, पिता, जब आपने अपनी सृजनात्मक शक्ति से हाथी और व्हेल, शेर और अजगर बनाए, you barely thought of the quantity of substance they cost. Little is left of the heavier and harder stuff, but of the lighter there is still enough in store. तब आपने इस पर ध्यान नहीं दिया कि वे कितनी सामग्री में बने. भारी और कठोर पदार्थ बहुत कम बचा है, लेकिन हल्की सामग्री अभी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. The creator reflected for a moment. Well, bring me whatever you have thought. सृजनकर्ता कुछ क्षणों के लिए विचार करने लगे और बोले, अच्छा, जो कुछ भी बचा है वह ले आओ. This time the creator took care to employ only a little of the harder materials. इस बार सृजनकर्ता ने सावधानीपूर्वक केवल थोड़ी मात्रा में कठोर सामग्री का उपयोग किया. To the new animal he made, he gave neither horns nor claws. He gave it teeth that could chew but not bite. उन्होंने नए जीव को न तो सींग दिए और न ही पंजे. उन्होंने उसे ऐसे दांत दिए जो केवल चबा सकते थे पर काट नहीं सकते थे. The energy he gave it was enough to make it useful on the battlefield, but he gave it no taste of its own for battles. उन्होंने उसमें इतनी शक्ति दी कि वह युद्ध के मैदान में उपयोगी हो सके, लेकिन उसे युद्ध करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं दी. The animals came to be known as the horse. यह जीव घोड़ा कहलाया. The creator had spent in its making enough of such stuff as the air and the sky are made of. सृजनकर्ता ने इसे बनाने में वही तत्व उपयोग किए जो आकाश और वायु से मिलते जुलते थे. The result was that its mind was full of the desire for freedom. इसका परिणाम यह हुआ कि उसके मन में स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा थी. It would run a race with the wind. It would dash to the point where sky touched earth. वह हवा के साथ दौड़ता, वहां तक जाने की कोशिश करता जहां आकाश धरती से मिलता प्रतीत होता. Other animals ran with a purpose, but the horse raced about for no apparent reason. अन्य जीव किसी उद्देश्य से दौड़ते, लेकिन घोड़ा बिना किसी स्पष्ट कारण के दौड़ता रहता. As though it were eager to fly away from its own self. जैसे वह खुद से ही भाग जाना चाहता हो. It did not fight, it did not pounce on. वह न तो लड़ता था, न ही किसी पर झपटता था. A prey, but loved only to run and to run. Wise men say that such a thing happens when you have too much of the wind and sky stuff in you. वह शिकार नहीं करता था, बल्कि बस दौड़ने और दौड़ने से प्रेम करता था. यानी लोग कहते हैं कि ऐसा तब होता है जब आपके भीतर हवा और आकाश का अंश बहुत अधिक हो. The creator was delighted with his own work. सृजनकर्ता अपनी कृति से अत्यंत प्रसन्न थे. To some animals he gave forests to live in, to some he gave dens. कुछ जीवों को उन्होंने जंगल दिए, कुछ को मादे प्रदान की. But as he liked to see the horse running an aimless race, he assigned to it an open field. लेकिन क्योंकि उन्हें घोड़े को बिना किसी उद्देश्य के दौड़ते देखना अच्छा लगता था, उन्होंने इसे एक खुला मैदान दिया. Beyond that field lived man. He was bent under the weight of the burdens he had accumulated. उस मैदान से परे मनुष्य रहता था. वह अपने संचित बोझ के भार से झुका हुआ था. As he saw the horse, he knew that he would be able to shift his burden onto its back if, somehow, he could capture it. जब उसने घोड़े को देखा, तो उसे लगा कि यदि वह किसी तरह इसे पकड़ सके, तो अपना बोझ इसके पीठ पर डाल सकता है. One day he cast his nets and captured the horse. एक दिन उसने जाल बिछाया और घोड़े को पकड़ लिया. He put a saddle on its back and a curb in its mouth and kept it confined in a prison. उसने उसकी पीठ पर काठी रखी, मुंह में लगाम डाली और उसे एक बाड़े में बंद कर दिया. The tiger remained in its forest home and the lion in its den, but the horse lost its home, the open field.
बाघ अपने जंगल में रहा, शेर अपनी मांद में रहा, लेकिन घोड़ा अपना घर, खुला मैदान खो बैठा। In spite of its deep love for freedom, it could not escape bondage. स्वतंत्रता के प्रति गहरी चाहत के बावजूद वह बंधन से बच नहीं सका। When life became unbearable, it kicked wildly at its prison walls. जब जीवन असहनीय हो गया, तो उसने अपनी कैद की दीवारों पर बेतहाशा लातें मारनी शुरू कर दी। That did less injury to the wall than to the horse's hoofs. इससे दीवार को कम और घोड़े की खुरों को अधिक नुकसान पहुंचा। But after constant kicks, bits of plaster began to fall off. लेकिन लगातार ठोकरों से प्लास्टर के टुकड़े गिरने लगे। It made man angry. This is what I call ingratitude, he said. यह देखकर मनुष्य क्रोधित हो गया। इसे मैं एहसान फरामोशी कहता हूँ, उसने कहा। I feed it, I have engaged servants to look after it, but the wretched animal does not see my kindness or apostrophe. मैं इसे भोजन देता हूँ, इसके देखभाल के लिए नौकर रखे हैं, फिर भी यह अभागा जानवर मेरी दया नहीं देखता। Firm measures were taken to tame the horse. घोड़े को वश में करने के लिए कड़े उपाय किए गए। At last man could say proudly that there wasn't a creature more faithful to him. अंततः मनुष्य गर्व से कहने लगा कि उससे अधिक वफादार प्राणी कोई नहीं है। Claws and horns it had not, nor did it have teeth which could bite. इसके पास न तो पंजे थे, न ही सींग, न ही यह काटने वाले दांत रखता था। Even kicking it had to give up for fear of the whip. यहाँ तक कि चाबुक के डर से उसे लात मारना भी छोड़ना पड़ा। All that was now left to it was to neigh. अब उसके पास केवल हिनहिनाने की ही आजादी बची थी। One day the creator heard the distressed neigh. एक दिन सृजनकर्ता ने उसकी करुणामयी हिनहिनाहट सुनी। He woke up from his meditation. वे अपने ध्यान से जाग उठे and looked down at the open fields of the earth. The horse was not there. और उन्होंने पृथ्वी के खुले मैदानों की ओर देखा। घोड़ा वहाँ नहीं था। He summoned death and said, "This is your doing. You have got hold of my horse." उन्होंने मृत्यु को बुलाया और कहा, यह तुम्हारा किया धरा है, तुमने मेरे घोड़े को पकड़ लिया है। Death said, "Eternal Father, you always look upon me with suspicion, but be good enough to cast your eye on the house of man." मृत्यु ने कहा, सर्वशक्तिमान पिता, आप हमेशा मुझ पर संदेह करते हैं, लेकिन कृपया मनुष्य के घर की ओर दृष्टि डालिए। The Creator looked down again and saw the horse standing in a narrow, walled space, neighing weakly. सृजनकर्ता ने फिर से नीचे देखा और देखा कि घोड़ा एक संतरे, दीवारों से घिरे स्थान में खड़ा था, कमजोरी से हिनहिना रहा था। His heart was filled with pity, and he said to man, "Unless you set the horse free, I shall give it teeth and claws like the tigers." उनका हृदय दया से भर गया और उन्होंने मनुष्य से कहा, यदि तुमने घोड़े को मुक्त नहीं किया, तो मैं इसे बाघ के समान दांत और पंजे दे दूंगा। Man said, "Father, this creature of yours does not deserve freedom. Look what a nice stable I've built for its comfort and well-being." मनुष्य ने कहा, पिता, आपका यह प्राणी स्वतंत्रता की योग्य नहीं है। देखिए, मैंने इसकी सुख सुविधा के लिए कितना सुंदर अस्तबल बनाया है। But the Creator insisted. लेकिन सृजनकर्ता अडिग रहे। From heaven the Creator could see the horse, but not the God. स्वर्ग से सृजनकर्ता घोड़े को देख सकते थे, लेकिन उसकी रस्सी को नहीं। He grew red with shame. वे शर्म से लाल हो गए। So that was the sort of creature he had made. तो यह वही प्राणी था जिसे उन्होंने बनाया था। He admitted to himself that it was one of the worst blunders he had ever committed. उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि यह उनकी सबसे बड़ी भूलों में से एक थी। Man said, "What is to be done with it? Are there no fields in heaven where it can run free?" मनुष्य ने कहा, अब इसका क्या किया जाए? क्या स्वर्ग में ऐसे कोई मैदान नहीं है जहाँ यह स्वतंत्र रूप से दौड़ सके? The Creator answered, "I have had enough of it. Take the creature back to your stable." सृजनकर्ता ने उत्तर दिया, बस अब बहुत हुआ, इसे अपने अस्तबल में वापस ले जाओ। Man said, "But, Father, what a burden it will be to me." मनुष्य ने कहा, लेकिन पिता, यह मेरे लिए कितना बड़ा बोझ होगा।
The creator answered, yes, but by accepting the burden you will show your greatness of heart. सृजनकर्ता ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन इस बोझ को स्वीकार करके तुम अपने हृदय की महानता प्रदर्शित करोगे। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठाकुर। वर्ड मीनिंग, समन, कॉल्ड फॉर, बुलाया, आदेश दिया, किसी को बुलाना या बुलाने का आदेश देना। ज़ील, एंथुसियाज्म, जोश, उत्साह, किसी कार्य के प्रति लगन और जोश। स्टफ, मटेरियल, सामान, सामग्री, कोई वस्तु या पदार्थ। पाउंस ऑन, अटैक सडनली, झपटना, अचानक हमला करना, तेजी से हमला करना। असाइन, गिव, सौंपा, नियुक्त किया, कोई काम या जिम्मेदारी देना। एक्यूमुलेटेड, गैदर, इकट्ठा किया, संचित किया, धीरे धीरे किसी चीज को इकट्ठा करना। बॉन्डेज, स्लेवरी, गुलामी, दास्ता, स्वतंत्रता से वंचित रहना। ब्लंडर्स, टू मेक फूलिश मिस्टेक्स, बड़ी गलती, मूर्खतापूर्ण भूल, लापरवाही से की गई बड़ी गलती। Like, share and subscribe.